Students, this lecture is a continuation of increasing and decreasing function from application of derivatives. ये लेक्चर में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं. आगे के प्रॉब्लम्स देखने वाले थे. पहला वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं. ठीक है. सो एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए, व्हाट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन? इफ़ x1 इज़ लेस दैन x2, then f of x1 is less than f of x2. If x1 is less than x2, I have shown you the graph also. If x1 is less than x2, x1 is less than x2, then f of x1 is less than f of x2 and f dash of x is greater than 0. For increasing function, the first order derivative is greater than 0. Okay. For decreasing function, the first order derivative is less than 0, and here the condition is if x1 is less than x2, then f of x1 is greater than f of x2, then your function is decreasing function. Okay, last lecture में हमने ये डिटेल में पढ़ा है कि ये हमने कैसे निकाला है. Okay, so here what is the question? If f is an increasing function, if f is increasing function, then find the values of x, where f of x is given 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7. ओके, तो जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि फाइंड द डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन राइट हियर? सो हियर f of x is equal to 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर minus 144x minus 7. Okay, so what is f dash of x? Differentiate with respect to x. So f dash of x is equal to 2 scalar as it is, derivative of x cube 3x square minus 15 derivative of x square 2x minus 144 derivative of x is 1 and derivative of a constant 7 is 0. Okay, so it is equal to 6x square minus 30x minus 144. Okay, so here you can take out 6 common. Here you can take out 6 common. Okay, so what is remaining in the bracket? So it is x square minus 5x minus it is 24 minus 24. Okay, so what is the next step? यहाँ तक तो हम आ गए कि फर्स्ट स्टेप है हमारा f dash of x फाइंड आउट करो. Okay, now next what is given? f is a increasing function. So as f is increasing function, what you will write? Hence f dash of x is greater than 0. f dash of x is greater than 0. But what is the value of f dash of x? First order derivative क्या आ जाएगा? Greater than 0. So what you will write? What is f dash of x? 6 into x square minus 5x minus 24 is equal to, sorry, greater than 0. It is greater than 0. Okay, so ये 6 यहाँ पे 0 से divide कर दो. So what is the next step? x square minus 5x minus 24 is greater than 0. Find a factor. So what are the factors we require here? 24 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि -5 एडिशन आना चाहिए. So -8 plus 3, -8 plus 3, so x minus 8 x plus 3 greater than 0. So when this multiplication is positive, greater than 0 मतलब क्या? पॉजिटिव. कि ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉजिटिव आएगा? इफ़ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव. अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? निगेटिव होने चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. प्लस इंटू प्लस इज ग्रेटर दैन 0, माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो अगेन इट विल बिकम ग्रेटर दैन 0. ओके, तो आइदर दोनों भी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर दोनों भी क्या होने चाहिए? लेस दैन 0 होने चाहिए, मतलब निगेटिव होने चाहिए. सो वी विल टेक द कंसिडर द टू केसेस हियर. So case 1, when this will happen? So if x minus 8 is greater than 0, it is positive, and second root also positive, x plus 3 is greater than 0. Both the numbers are greater than 0, then your product is greater than 0. Okay, it means, so x minus 8 is greater than 0 means what? X is greater than 8, and here x is greater than minus of 3. Okay,
x इज ग्रेटर दैन 8 और x इज ग्रेटर दैन -3। सो दोनों का कंबाइन जो हमारा इक्वेशन रहेगा कि x इज ग्रेटर दैन -3, अगर आप रियल लाइन देखोगे तो दिस इज योर 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। तो व्हाट इज अ कंडीशन, x मस्ट बी ग्रेटर दैन -3 एंड हियर इट इज x 8 से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर आप ये एरो लेते हो तो ये एरो से तो ये एरो आगे ही है। सो वी विल टेक दिस कंडीशन। सो हेंस x इज ग्रेटर दैन 8, दोनों का कंबाइन कंडीशन कौन सा हो गया, x इज ग्रेटर दैन 8। ओके, नाउ वी विल कंसिडर द केस 2, इसके आगे का कंटिन्यूएशन केस 2। केस 2, सो व्हाट इज केस 2, दोनों के दोनों अगर निगेटिव है तो ओके, सो बोथ आर लेस दैन 0। सो x minus 8 is less than 0 and x plus 3 is also less than 0। अगर दोनों निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ सेकेंड कंडीशन। सो x इज लेस दैन 8 एंड हियर x इज लेस दैन -3। ओके, x इज लेस दैन 8 एंड x इज लेस दैन -3। तो अगर आप यहाँ पे भी फिर से रियल लाइन देखोगे तो x का जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे -3 है, 0 है, हियर इट इज़ 8, तो x क्या होना चाहिए, 8 से लेस होना चाहिए, और x यहाँ पे भी क्या है, -3 से भी लेस होना चाहिए। तो दोनों का अगर कंबाइंड कंडीशन हम देखेंगे तो इट इज़ फॉर दिस, सो x मस्ट बी less than -3, x must be less than -3। hence the solution is और x solution नहीं बोल सकते, हम उसको बोलेंगे कि hence find the values of x when the function is increasing function। hence f is increasing function, f is increasing function if x is greater than 8, x is greater than 8 and x is less than -3। x is less than -3 means what, f is increasing function on the interval। अगर आपको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है, ये भी करेक्ट आंसर है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, f is increasing function on x का वैल्यू क्या है, 8 से ग्रेटर है, मीन्स what, 8 to infinity and x must be less than -3। so you can write here -infinity to -3। so f is increasing function on these two intervals। x का वैल्यू ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तो 8 के आगे पूरे वैल्यू, सो 8 to infinity एंड x का वैल्यू लेस देन -3 होना चाहिए, तो ग्रेटर वैल्यू है यहाँ पे -3 अप टू -infinity। सो f is increasing function on these two intervals। ओके, तो ये हो गया इसका कंबाइंड सॉल्यूशन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन फॉर दिस टू, केस 1 एंड केस 2। ओके, नाउ वी विल सी, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x such that f of x is decreasing function। find the values of x such that f of x is decreasing function। तो जो अभी हमने प्रॉब्लम देखा था उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसीलिए हमने f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 लिया था। नाउ हियर इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज f of x is given 2x cube -15x square -144x -7। so start with the solution। and what is the first step of the solution, find first order derivative। so we will first write here function as it is, 2x cube -15x square -144x -7। now differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। so what is f dash of x, 2 into derivative of x cube 3x square -15 into derivative of x square 2x -144 into derivative of x is 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया है यहाँ पे 0। सो इट इज़ इक्वल टू 6x square -30x -144। so here you can take out 6 common, here you can take out 6 common, so it is x square -5x -24, x square -5x -24। this is your value for
f dash of x. Now next, what is given? F of x is a decreasing function. So it is given that f is decreasing function. F is decreasing function. Hence what you can write? The first order derivative f dash of x is strictly less than 0. F dash of x is strictly less than 0. Okay. Hence you can write here. So what is the value of f dash of x? 6 into x square minus 5x minus 24 is less than of 0. नेक्स्ट टेक द 6 ऑन राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में तो RHS में डिवाइड हो जाएगा. सो इट इज़ एक्स स्क्वायर minus 5x minus 24 is less than 0. Okay. Now find the factors. So what are the factors here? Minus 8 plus 3. So it is x minus 8 x plus 3. सी ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट आना चाहिए -24 के. हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी -5. तो अगर हम यहाँ पे -8 और +3 लेंगे तो देखो यहाँ पे ये ऐड करने के बाद कितना हो जाता है? -5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाता है -24. दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर x -8 एंड x + 3 लेस दैन 0. ओके, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स. नाउ व्हेन दिस product is negative, less than 0 means what? Negative. So when the product of two numbers is negative, तो दोनों में से एक कोई तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव. अगर दोनों पॉजिटिव रहे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा. अगर दोनों निगेटिव रहे तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा. वी रिक्वायर हियर निगेटिव. हेंस द केस 1 इज व्हेन द प्रोडक्ट इज निगेटिव. सो केस 1 इज एक तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, और सेकंड केस होगा कि फर्स्ट फैक्टर आपका निगेटिव है और सेकंड फैक्टर आपका पॉजिटिव है. तो फर्स्ट केस हम देखेंगे कि x minus 8 is greater than 0 and x plus 3 is less than 0. x minus 8 is greater than 0 and x plus 3 is less than 0. So here x is greater than 8 and x is less than minus of 3. x is greater than 8 and x is less than minus of 3. Okay, so here x is greater than 8 and x is less than minus of 3. ये हमारा कंडीशन है. Okay, so केस 2 हम देखेंगे अभी. what is a case 2? wait a minute. तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं. से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर दैन 8 है. सी ये दोनों कंडीशन अगर कहाँ पे सेटिस्फाई होंगे? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे x का वैल्यू ग्रेटर दैन 8 है, ये आपका 0 है, हियर इट इज़ 8 और यहाँ पे है -3. तो x इज़ लेस दैन -3 एंड x इज़ ग्रेटर दैन 8. तो दोनों टाइम एट अ टाइम ये x का वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा कि वो लेस दैन -3 भी है और ग्रेटर दैन 8 भी है. तो ये तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं. तो वी विल टेक द केस 2. जो हम केस 2 कंसिडर करेंगे वो मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ कि केस 2 क्या रहेगा इसका. तो केस 2 इज़ x minus 8 is less than 0 and second factor is positive, x plus 3 is greater than 0. So here it is x is less than 8 and x is greater than minus of 3. x is less than 8 and x is greater than minus of 3 means what? अगर आप यहाँ पे रियल लाइन देखोगे तो इट इज़ अ वैलिड सॉल्यूशन. सी 0 है यहाँ पे, ये 8 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा -3. यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, 1 2 मैंने बाकी के नंबर्स नहीं लिखे हैं. ओके, तो x का वैल्यू जो है वो 8 से लेस आना चाहिए और -3 से ग्रेटर आना चाहिए. 8 से लेस आना चाहिए और -3 से ग्रेटर आना चाहिए. सो हेंस f is decreasing function. Hence f is decreasing function on the interval -3 to 8. f is decreasing function on the interval -3 to 8. ये फंक्शन क्या रहेगा? डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा. ओके, तो ये पहला केस तो आएगा ही नहीं. जो हमने यहाँ पे पहला केस कंसिडर किया है कि x का वैल्यू लेस देन -3, x इज ग्रेटर देन 8, इनका कंबाइन कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन.
दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम में आपको पूरा ही लिखना है, केस 1 भी कंसिडर करना है, केस 2 भी कंसिडर करना है। आपको कैसे समझेगा पहले से कि कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा निगेटिव रहेगा। सो यू हैव टू राइट बोथ द केसेस, यू हैव टू राइट बोथ द केसेस। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ही प्रॉब्लम है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स such that this given function is decreasing function. Find the values of x such that the given function is decreasing function. Okay, so here what is the solution? सबसे पहले solution में क्या start करेंगे हम? We will find the first order derivative. So f of x क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 84x माइनस 7। नाउ डिफरेंशिएट, सबसे पहले याद रखने का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज योर फर्स्ट स्टेप। 2 स्केलर टेकन आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 15, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस 84, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। सो इट इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84। सो हियर ऑल्सो यू कैन टेक आउट 6 कॉमन। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x कॉमन निकालते हो, मतलब क्या करते हो आप, ये हर जो टर्म है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 6 से माइनस साइन एज इट इज़ 14। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये 14, 6 4 24। ओके, तो ये आ गया 14। ओके, next, so this is your value for f dash of x. Now what is given? f is a decreasing function. It is given that, ये प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है, it is given that f of x is decreasing function. f of x is decreasing function. So as it is a decreasing function, so what is the condition? F dash of x is less than 0. As your function is decreasing function, hence first order derivative is less than 0. So what is the first order derivative? 6 into x square minus 5x minus 40 is less than 0. X square minus 5x minus 14 is less than 0. Okay, so here it is, अगर आप ये 6 RHS में लेके जाते हो तो ये हो जाएगा x square minus 5x minus 14 is less than 0. X square minus 5x minus 14 is less than 0. Now next step is we have to find the factors for this quadratic equation. Okay, इसके factors find out करने, तो 14 के ऐसे factors आने चाहिए कि आपको क्या मिलना चाहिए, उसका addition और subtraction should be minus of 5। तो minus 14, देखो यहाँ पे माइनस 7 प्लस 2, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ 5, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 14। सो योर फैक्टर्स आर x माइनस 7 x प्लस 2 लेस दैन 0। x माइनस 7 x प्लस 2 इज लेस दैन 0 मीन्स वॉट, द प्रोडक्ट इज निगेटिव, द प्रोडक्ट इज निगेटिव। एंड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज निगेटिव, कब वो निगेटिव होता है, अगर फर्स्ट नंबर निगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है तो आपका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, या फिर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है सेकंड नंबर निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। सी, प्लस इंटू माइनस इज निगेटिव एंड माइनस इंटू प्लस इज निगेटिव, दोनों प्लस होंगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों माइनस भी होंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक प्लस लेना है एक माइनस लेना है, मतलब एक ग्रेटर देन 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा, लेस देन 0। सो हियर वी विल कंसिडर the two cases. Case 1 is x minus 7 is greater than 0 and x plus 2 is less than 0. First is positive, second is negative. Okay, so hence it is x is greater than 7 and x is less than minus of 2. Okay, तो x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रेटर देन 7 भी हो और लेस देन -2 भी हो। तो अगर आप यहाँ पे रियल लाइन निकालोगे तो ये हो गया आपका 0, ये -1 -2, यहाँ पे आ जाएगा ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो x का वैल्यू 7 से ग्रेटर है और x का वैल्यू -2 से लेस है, विच इज़ नॉट अ पॉसिबल। ऐसा कोई भी यहाँ पे सेट एग्जिट, मतलब ऐसा कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा जो दोनों वैल्यूज़ को एट अ टाइम सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो वी विल कंसिडर द केस 2। केस 2 देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर केस 2
So x minus 7 less than 0 and x plus 2 greater than 0. पहला वाला नेगेटिव लेते हैं, सेकेंड वाला पॉजिटिव लेते हैं. So here it is x is less than 7 and x is greater than minus of 2. The value of x is less than 7. तो अगर फिर से आप रियल लाइन देखोगे तो यहाँ पे 0 7 माइनस ऑफ 2. तो x का वैल्यू -2 से ग्रेटर है और x का वैल्यू 7 से लेस है. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. हेंस f is decreasing function for, or f is decreasing on the interval -2 to 7. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कोई ऐसे लिखता है -2 लेस दैन x लेस दैन 7. दिस इज ऑल्सो योर सोल्यूशन. आप ऐसे भी लिख रहे हो -2 to 7 फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ओके. या फिर -2 इज लेस दैन x लेस दैन 7, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ तक हो गया हमारा जो आपका सेकेंड एक्सरसाइज है. इट डिपेंड्स ऑन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. वेरी 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 इजी कंसेप्ट. इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ग्रेटर दैन 0 लेना है, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस दैन 0. सब के सब प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन दिस टू formulas. All the problems are based on this two formulas for your increasing decreasing function exercise. Okay, thank you students. So we will continue in the next lecture. Thank you.